हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जाने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आज हम कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रिंसिपल को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसका नाम है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हमने इसको तैयार करना है और इसके अंदर से जो मेन थ्योरीज़ वगैरह इसके अंदर दी गई हैं वो भी आज आप लोगों को मार्क करवाई जाएंगी और इसकी डायग्राम वगैरह के अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वगैरह आप लोगों को की जाएगी और इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी भी आप लोगों को जो है वो बयान की जाएगी। उसके बारे में तफसील वगैरह आप लोगों को बताई जाएगी और डेरिवेशन के बारे में भी आप लोगों को आज ही की वीडियो में मैं मुकम्मल आप लोगों को बताऊंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर मेरे पास 7 मौजूद है, 7.6, जिसका अगर आप टॉपिक नंबर देखेंगे तो 7.6 होगा। पेज नंबर 155, क्लास 9th फिज़िक्स का पेज नंबर आप 155 खोलेंगे तो आपको पहला टॉपिक पेज के टॉप के ऊपर आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। An air-filled balloon immediately shoots up to the surface when released underwater. The same would happen if a piece of wood is released underwater. We might have noticed that a mug filled with water feels light underwater but feels heavy as soon as we take it out of water. More than 2000 years ago, the Greek scientist Archimedes noticed that there is an upward force which acts on the object kept inside a liquid. As a result, a part lose a weight is observed in the object. This upward force acting on the object is called the upthrust of the liquid. Archimedes' principle states that when an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust acts on it equal to the weight of the liquid it displaces. Consider a solid cylinder of cross-sectional area A and height h immersed in a liquid as shown in figure 7.18. Let h1 and h2 be the depth of the top and the bottom
faces of the cylinder respectively from the surface of the liquid. Then H2 minus H1 equals to H. If P1 and P2 are the liquid pressures at depths H1 and H2 respectively, and P is its density, then according to equation 7.3, P1 is equal to PgH1, then P2 equals to PgH2. Let the force F1 is exerted at the cylinder top by the liquid due to pressure P1 and the force F2, which is exerted at the bottom of the cylinder by the liquid due to P2 की वजह से जो है वो लिक्विड सिलेंडर के बॉटम के ऊपर F2 के नाम से जो है वो एक्सर्ट कर रहा है। F1 equals to P1 multiply by A equals to PgH1 multiply by A. Similarly, F2 equals to P2 multiply by A equals to PgH2A. F1 and F2 are acting on the opposite faces of the cylinder. Therefore, the net force F will be F2 minus F1 in the direction of F2. This net force F on the cylinder is called the upthrust of the liquid. अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। जो मेन डेरिवेशन है लॉन्ग क्वेश्चन की, उसकी तरफ चलते हैं। F2 minus F1 equals to PgH2 multiply by A minus PgH1 multiply by A। उसके बाद दूसरी लाइन पर हम लिखेंगे PgH H2 minus H1 और upthrust of liquid equals to PgAH or PgV. Here AH is the volume V
of the cylinder by the cylinder. Therefore, PGV is the weight of liquid displaced. Equation 7.6 shows that an upthrust acts on the body immersed in a liquid and is equal to the weight of liquid displaced, which is Archimedes' principle. Example 7.3. A wooden cube of sides 10 cm each has been dipped completely in water. Calculate the upthrust of water acting on it. Solution. Length of side L is equal to 10 centimeter and 10 centimeter is equal to 0.1 meter. Volume V is equals to L cube. L cube is equal to 0.1 meter cube. 0.1 meter cube is equal to 1 multiply 10 raised to power minus 3 meter cube. Density of water P is equals to 1000 kilogram meter cube. Upthrust of water equals to PGV. अब PGV की हम वैल्यू पुट कर देते हैं. P की वैल्यू 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10. ठीक है, तो हमने फाइंड करना था फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कि हमें अपट्रस्ट एक्ट करना था. तो अपट्रस्ट भी एक फोर्स ही होता है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो हम 10 के आगे न्यूटन लिख देंगे, यानी कि 10 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा. वो कहता है थस अपट्रस्ट ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन अ वुडन क्यूब इज 10 न्यूटन. तो ये एग्जाम्पल भी हमने अब पूरी पढ़ ली है, बाकी डेरिवेशन भी हमने आप लोगों को पूरी बता दी है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने आप लोगों को उसकी पूरी बता दी है, और डेफिनेशन भी हमने आप लोगों को बता दी है. बाकी डायग्राम वगैरह में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने एक जो है वो बीकर टाइप बना लेना है, फिर उसके बाद आपने उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, फिर F1 उसके ऊपर एक्ट करना है और F2 नीचे से एक्ट करेगा, और उसके बाद H1 और H2 और P1 और P2 भी एक्ट कर जाएगा और आपकी डायग्राम रेडी हो जाएगी. ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. बाकी एक दफ़ा मज़ीद ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने आर्चिमेडीज प्रिंसिपल को आज डिस्कस किया था, उसकी एक्सप्लेनेशन, उस साइंटिस्ट के बारे में. आर्चिमेडीज एक साइंटिस्ट था, उसके बारे में हमने पढ़ा आज. डेफिनेशन आर्चिमेडीज प्रिंसिपल की क्या है वो पढ़ी है, डेरिवेशन पढ़ी है इसकी सारी, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है सारी, और इसका एक एग्जांपल जो कि 7.3 थी वो भी पढ़ लिया. तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.